آدھا برس ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ نظامیہ طبی ہاسپٹل کے کاموں کو آئندہ سال جنوری تک مکمل کرنے وزیر صحت کی عہدیداروں کو ہدایت۔ طبی عملے اور ٹیچنگ فیکلٹی کے تقررات کو یقینی بنانے کا اعلان۔ متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم سے قبل حیدرآباد اور سیبرآباد کی ترقی میرے دور حکومت میں ہوئی، چندر بابو نائیڈو نے کیا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ کے پاس فیوچر سٹی اور موسیٰ ندی کے لیے رقم ہے، کسانوں کے لیے نہیں۔ BRS قائد ہریش راؤ کی وزیر اعلیٰ پر تنقید۔ تلنگانہ میں کرناٹک طرز پر مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ PRC جاری کرنے پر غور، تلنگانہ حکومت کے ایڈوائزر محمد علی شبیر کا بیان۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خون کے پیاسے، BRS کا بلڈ ڈونیشن کیمپ۔ خون کے پیکٹس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی قیامگاہ تک مارچ کی کوشش ناکام۔ نام میں ٹائپنگ کی غلطی پر غیر ملکی قرار دینا درست نہیں، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ آسام کے 27 افراد کو بڑی راحت۔ تلنگانہ ٹیٹ امتحان کے نتائج جاری، تقریباً 44% امیدوار ہوئے کامیاب۔ چھ قتل کرتے ہوئے سنسنی پھیلانے والے شہاباد کے سفاکانہ قاتل راج کمار کی نعش کوتور کے قریب دستیاب، پولیس نے خودکشی کا شبہ کیا ظاہر۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ شہریت کی تصدیق کا عمل اور کسی شخص کو غیر ملکی قرار دینے کا طریقہ کار مکمل طور پر شفاف ہونا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے آسام کے 27 افراد کو جنہیں غیر ملکی قرار دیا گیا تھا عبوری تحفظ فراہم کرتے ہوئے کہا کہ شہریت اور غیر ملکی ہونے کا تعین آئینی اور قانونی لحاظ سے نہایت ہی اہم معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ غیر قانونی طور پر کسی کو بھی بھارتی شہریت حاصل کرنے سے روکنے کا اختیار حکومت ہند کے پاس ہے، تاہم ہر معاملے میں قانونی عمل کی بالادستی برقرار رہنی چاہیے۔ عدالت نے اس سلسلے میں گوہاٹی ہائی کورٹ اور متعلقہ ٹریبونلز کے فیصلوں کو منسوخ کر دیا۔ آسام کے 27 افراد نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ پرانی ووٹر فہرستوں میں ٹائپنگ کی غلطیوں اور ناموں کے ہجے میں معمولی فرق کو بنیاد بنا کر انہیں غیر ملکی قرار دیا گیا، جو غیر منصفانہ ہے۔ سپریم کورٹ نے انہیں راحت دیتے ہوئے کہا کہ اس نے ابھی ان کی شہریت سے متعلق شواہد کا جائزہ نہیں لیا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی کہ متعلقہ ٹریبونلز اس معاملے کی دوبارہ سماعت کریں اور اس وقت تک ان 27 افراد کے خلاف کوئی جبری کارروائی نہ کی جائے۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ یونانی طبی خدمات کو عوام کے قریب لانے اور اس کے معیاری علاج کو یقینی بنانے کے اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ پیر کو وزیر صحت نے سکریٹریٹ میں محکمہ آیوش کی کارکردگی، نظامیہ طبی ہاسپٹل میں فراہم کی جانے والی طبی خدمات، انفراسٹرکچر، تعمیراتی کاموں اور مستقبل کی سرگرمیوں کا جامع جائزہ لیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج اور نظامیہ جنرل ہاسپٹل ریاست کے یونانی طبی خدمات کے باوقار ادارے ہیں۔ حکومت ان اداروں کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے۔ ریاستی وزیر نے TGMSIDC کے چیف انجینئر کو ہاسپٹل میں زیر تعمیر آؤٹ پیشنٹ بلاک اور فارمیسی کی عمارت کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ تعمیراتی کام آئندہ جنوری تک مکمل کرتے ہوئے اسے عوام کے لیے دستیاب رکھا جائے۔ وزیر موصوف نے محکمہ صحت کے پرنسپل سیکریٹری کو ہدایت دی ہے کہ ڈاکٹرز، ٹیچنگ فیکلٹی اور دیگر عملے کی مخلوعہ جائیدادوں کو پور کرنے کے لیے فوری تجاویز حکومت کو روانہ کریں تاکہ طبی خدمات اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔
وزیر صحت نے کہا کہ یونانی ڈسپنسریز اور ہاسپٹل میں ضروری احتیاط آلات اور انفراسٹرکچر کو بھی دستیاب رکھیں۔ اس اجلاس میں رکن اسمبلی چارمینار میر ذوالفقار علی، محکمہ صحت کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر کرسٹینا، آیوش کے ڈائریکٹر سری کانت بابو، نظامیہ طبی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ اور محکمے کے اعلیٰ عہدیدار شریک تھے۔ تلنگانہ حکومت کرناٹک کی طرز پر مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ PRC کا نظام متعارف کروانے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے پیر کو بتایا کہ اس سلسلے میں ایک کابینہ ذیلی کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے جو اس تجویز کا جائزہ لے گی۔ محمد علی شبیر نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ایک مکتوب پیش کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ ریاست میں طویل عرصے سے مقیم افراد کے لیے حکومت کی جانب سے ایک معیاری مستقل رہائشی دستاویز جاری کیے جائیں تاکہ انتخابی فہرستوں کی جاری خصوصی نظر ثانی SIR کے دوران رہائش کے ثبوت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنے والے ووٹروں کو سہولت مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس تجویز پر اعلیٰ حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے اور امکان ہے کہ حکومت کرناٹک کے PRC نظام کا مطالعہ کرنے اور تلنگانہ میں اسی طرز کا نظام نافذ کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دے گی۔ شبیر علی کے مطابق مجوزہ PRC ایسے شہریوں کے لیے حکومت کی جانب سے تسلیم شدہ ایک اضافی دستاویز ثابت ہو سکتا ہے جو جاری SIR کے دوران حوالے کے طور پر استعمال ہونے والی 2002 کی ووٹر لسٹ میں اپنا یا اپنے خاندان کے افراد کا نام تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم سے پہلے حیدرآباد اور سائبرآباد کی ترقی ان کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ ملک میں اگر کہیں زیادہ آمدنی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تلنگانہ ریاست ہے۔ اس کی وجہ سائبرآباد کی ترقی ہے۔ آج یہ ایک اہم معیشت کا مرکز بن چکا ہے۔ ریاست کی تقسیم ہوئی ہے، ان کی کوششوں سے ترقی پایا شہر سائبرآباد تلنگانہ میں چلا گیا۔ یہ اچھی بات ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے علاقے بھی ایسی ہی ترقی کریں۔ విభజన జరిగింది, కొంత నేనే హైదరాబాద్ని సైబరాబాద్ని అభివృద్ధి చేశాను। ఈరోజు దేశంలో హైయెస్ట్ తలసరి ఆదాయం ఎక్కడంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం। దానికి కారణం ఏంటంటే సైబరాబాద్ నగరం, అది నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి కేంద్రంగా తయారైంది। అదే సమయంలో విభజన జరిగిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఆలోచించేవాడిని, నేను చేసిన ఒక నగరం తెలంగాణకి వెళ్ళింది, మంచిది, అక్కడుండే వాళ్ళు బాగుపడ్డారు, ఇక్కడుండే వాళ్ళని కూడా బాగు చేయాలి, వారితో సమానంగా పైకి తేవాలన్నది నా జీవిత ఆశయమని మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। అందుకే ఎప్పుడు ఆలోచించినా 24 గంటలు అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను। تلنگانہ ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ TG ٹیٹ کے نتائج پیر کو جاری کر دیے گئے۔ محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر نوین نکولس نے دوپہر میں نتائج کا اعلان کیا۔ اس سال مجموعی طور پر 43.94% امیدوار کامیاب قرار پائے۔ ریاست بھر سے اس امتحان کے لیے 1,53,752 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائیں، جن میں سے 1,15,028 امیدوار امتحان میں شریک ہوئے۔ ان میں 23,623 سروس اساتذہ اور 91,405 دیگر امیدوار شامل تھے۔
नताइज के मुताबिक 50,544 उम्मीदवार कामयाब हुए, जो इम्तिहान में शरीक होने वालों का 43.94% है। उम्मीदवार अपने नताइज TG टेट की सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी काटने और खाल उखाड़ने की बात करते हैं, उस वक्त पुलिस की खाकी बुक को क्या होता है। हरीश राव ने पार्टी कैडर से खिताब करते हुए कहा कि जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है, लेकिन जब वज़ीर आला इस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस अपने आंखें बंद कर लेती है। हरीश राव ने वज़ीर आला की तरफ से रकम न होने के दावे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं। फ्यूचर सिटी के लिए भी बड़ी रकम खर्च किए जाने का मंसूबा है। फुटबॉल खेलने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए। किसानों और गरीबों के लिए पैसे नहीं हैं। रैतु बंधु के लिए किसानों को रकम नहीं जारी की जा रही है, सिर्फ अपने शौक और मफाद के लिए रकम खर्च की जा रही है। ఈ డీజీపీని అడుగుతున్న కాకి బుక్ ఉన్నది తెలంగాణలో అన్నావు కదా, మరి నీ కాకి బుక్ కాకెత్తుకపోయిందా? ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డి మీద కేసు పెట్టలేవు అని అడుగుతా ఉన్నా. ఎవరినన్నా కోస్తా రక్తం జల్లుతా అని మాట్లాడితే ఊకుంటారా? నువ్వు మాట్లాడితే నువ్వో నేను ఎవరైనా రేవంత్ రెడ్డి కోస్తాం రక్తం తీస్తాం రేవంత్ రెడ్డి అంటే దెబ్బ మన మీద కేసు పెట్టరా? మరి ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ఈ రకంగా మాట్లాడితే అన్ని టీవీల్లో లైవ్ వస్తే రాష్ట్ర పోలీసులు ఏమన్నా కళ్ళు మూసుకుంటున్నారా? చట్టం లేదా? హింసను ప్రేరేపించవచ్చా? ఏ వ్యక్తి అయినా సరే హింసను ప్రేరేపిస్తే, క్రిమినల్ మాటలు మాట్లాడితే, తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే కేసులు నమోదు చేయాల్సిందే, ఆ వ్యక్తిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాల్సిందే. ముఖ్య गुज़िश्ता हफ्ते सोने की कीमत में तकरीबन 2,400 रुपये की कमी के बाद नए हफ्ते के आगाज़ पर भी ख़रीदारों को मामूली राहत मिली है। पीर की सुबह 10 बजे हैदराबाद सराफा मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,420 रुपये फ़ी 10 ग्राम की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद उसकी कीमत 1,42,910 रुपये हो गई। इस तरह ज़ेवरात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत भी 1,300 रुपये कम होकर 1,31,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुंच गई। तेलंगाना कांग्रेस के एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत के लोग बखूबी जानते हैं कि किस खानदान को इख्तिदार और पैसे की हवस है। मीडिया के लिए जारी अपने बयान में किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की आवाम ने 10 साल तक केसीआर खानदान की मुतलकुल अनान हुक्मरानी का मुशाहिदा किया। रियासत के अवाम जानते हैं कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस और सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत है। केसीआर ने तश्कील तेलंगाना पर दलित को वज़ीर आला बनाने का दावा किया था, लेकिन खुद इख्तिदार की हवस में 10 साल हुक्मरानी की। तेलंगाना के लोग ये भी जानते हैं कि लाखों करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का क्या हुआ। उन्होंने सवाल किया कि तहरीक तेलंगाना में केटीआर कहाँ थे। रियासत की तश्कील अमल में आने के बाद केसीआर ने सिर्फ अपने घर के 5 या 6 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की। रियासत के नौजवानों को मुलाजिमतों से महरूम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के 2 रुख हैं और रियासत के अवाम जानते हैं कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को 8 नशिस्तें कैसे मिली। కేటీఆర్ గారు రక్తదాహం, ధనదాహం, అధికార దాహం ఎవరికి ఉందో తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలలో బ్రహ్మాండంగా చూసిరు కాబట్టి మనల్ని ఇంటికి పరిమితం చేసిర్రు. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిని, కాంగ్రెస్ పార్టీని రక్తదాహం 60 సంవత్సరాల తెలంగాణకు ఎంతమందిని బలిదానం చేసిరని అడుగుతున్నాను. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, ఈరోజు తెలంగాణ ఇవ్వడానికి కారణం ఎవరు? తెలంగాణ ఇచ్చింది ఎవరు? తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, సోనియా గాంధీ. ఎందుకు ఇచ్చింది? మీరు కావాలని అక్కడ ప్రజలను, విద్యార్థులను రెచ్చగొట్టి బలిదానాలకు మీరు కారణమయ్యి
మీ బావ అగ్గిపెట్టి హరీష్ని అడిగితే చెప్తాడు ఏమేం చేసిర్రో మీరు అధికారంలోకి రావడానికి అని చెప్పి, ఏమేమి అబద్ధాలు చెప్పిర్రో. बीआरएस के रुकन कौंसल एल रमना ने कहा है कि पार्टी सरबराह केसीआर और कारगुजार सदर केटीआर पार्टी कैडर को एसआईआर के अमल के दौरान चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि एक भी अहल वोटर का वोट जाया नहीं होना चाहिए। पार्टी ने इस अमल के जायजा के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि तमाम अजला में एसआईआर के अमल की जांच जारी है। एल रमना का कहना था कि मैपिंग का अमल सही तौर पर अंजाम नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में एक ही दिन में जामे सर्वे को मुकम्मल किया गया था, लेकिन अब तक रियासत में एसआईआर के सिर्फ 37% फॉर्म ही पूरे किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन से भी नुमाइंदगी की गई है कि अवाम को मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। बीएलओस को घर घर जाकर फॉर्म तकसीम करने चाहिए और पूर्ण होने के बाद उसे वापस लिया जाना चाहिए। ముఖ్య కార్యకర్తలను గుర్తించి వారందరికీ అవకాశం ఇచ్చి వారితో ఈ సరసంబంధించిన ప్రక్రియలో ఓటర్లందరికీ సహకరించే విధంగా అర్హుడైనటువంటి ప్రతి ఓటర్ తిరిగి మళ్ళీ ఓటు హక్కు పొందే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పని వారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం మేరకు ఆదేశాన్ని అమలు చేయడానికి సోదరులు కేటీఆర్ గారు మా అందరిని కూడా రాష్ట్రంలో 9 మందిని సర్ కమిటీకి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాటు చేసి మాకు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతలకు అనుగుణంగా మేము జిహెచ్ఎంసీ మినహాయిస్తే పూర్వపు ఒక్కొక్క జిల్లాను ఒక్కొక్కరము బాధ్యత తీసుకొని గత వారం రోజులుగా तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जारी खुसूसी वोटर नज़रसानी मुहिम स्पेशल एसआईआर इन्वेस्टिगेशन रिवीजन के तहत अगर कोई वोटर मुकर्ररा एनुमरेशन फॉर्म भरकर अपने मुतालिका बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा नहीं कराता तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाबित के मुताबिक उसका नाम वोटर लिस्ट से खारिज किया जा सकता है। इतवार के रोज़ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रंगारेड्डी ज़िले के कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से नारायणा रेड्डी के हमरा खुसूसी वोटर नज़रसानी मुहिम के तहत फार्मों की तकसीम, वसूली और डिजिटलाइजेशन के अमल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने श्रीलिंगमपल्ली असम्बली हलके के गुलमोहिज पार्क कॉलोनी और माई होम मंगला गेटेड कम्युनिटी का दौरा किया। इसके अलावा एलबी नगर असम्बली हलके के साईराम कॉलोनी, BN रेड्डी और साहेब नगर कल्याणा मंडपम में जारी एनुमरेशन मुहिम का भी मुआयना किया और मुतल्लिक़ा हकाम से पेशरफ्त की तफसीलात हासिल की। जायज़ा इजलास के दौरान सी सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी अमले को हिदायत दी कि आवाम में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा की जाए और हर वोटर को ये बात वाज़ेह तौर पर बताई जाए कि अगर वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराएंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किया जा सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़रा और अवामी नुमाइंदों को अज़ला के दौरे की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को पाबंद किया कि 1 माह में कम से कम 3 दिन दही इलाक़ों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लें। अज़ला के दौरों पर जारिया माह से अमलावरी का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला ख़ुद भी मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगे। बावसूख ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कीमात, ख़ास तौर पर फलाही स्कीमात पर अमलावरी में ताख़ीर की शिकायतों और हुकूमत की आवाम से दूरी जैसे उमूर का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आला वज़रा और अवामी नुमाइंदों से उन्होंने कहा कि वो 10 दिन में 1 मरतबा अज़ला का दौरा करें और ख़ास तौर पर दूर दराज के दही इलाक़ों तक पहुँचकर आवाम के दरमियान वक्त गुजारें। ज़्यादातर अवामी नुमाइंदे हैदराबाद तक महदूद हो चुके हैं। वज़ीर आला की जानिब से वज़रा और अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी और उनकी मकबूलियत के बारे में सर्वे का अहतमाम किया गया। बताया जाता है कि आवाम में बढ़ती नाराज़गी को देखते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़रा और अवामी नुमाइंदों को दौराए अज़ला की हिदायत दी है।
बीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में पीर को खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस ब्लड बैंक का थीम खून के प्यासे रेवंत रेड्डी रखा गया था। बीआरएस वी और बीआरएस के कारकुनों ने बड़ी तादाद में इस कैंप में हिस्सा लिया। बीआरएस कारकुनों ने कहा कि रियासत के किसानों के लिए भी वो खून का अतिया देने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आला सिर्फ किसानों का और गरीबों का खून चूस रहे हैं। बाद में बीआरएस पार्टी के कारकुन जमा किए गए खून के पैकेट्स लेकर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ రైతులకు నీళ్లు పెట్టే తెలంగాణ రైతులకు నీళ్లు పెట్టే बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल टी रविंदर राव ने सवाल किया है कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी आखिर किस को जेल में डालेंगे और किसे मारेंगे। मीडिया से बात करते हुए रविंदर राव ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आला रियासत तेलंगाना को क़हत ज़दा रेगिस्तान में तब्दील करते हैं और अपने आंध्राई आखा का हुक्म बजा लाते हैं तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे और वज़ीर-ए-आला का हिसाब बराबर करेंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के इक़दामात और पॉलिसियों को अहमखाना करार दिया। उन्होंने कहा कि सैलाब के दिनों में पानी को पंप किया गया, ये कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी है। केटीआर ने कन्नेपल्ली और मेडीगड्डा को लेकर तमाम हक़ाइक़ बयान किए हैं, इसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आला को कुछ समझ में नहीं आया। ఎవర్రా నీ బెదిరింపులకు భయపడేది, ఎవర్రా నీ మాటలకు వెరిసేది? పెట్టు బిడ్డ పెట్టు. యావత్ తెలంగాణ సిద్ధంగా ఉంది. కరువు ఎడారిగా మారుస్తానంటే నీ ఆంధ్ర పొత్తులకి నీ గురువులకి ఇలా భరణం చెల్లించుకుంటానంటే మూసుకొని ఉండే అమాయకులు తెలంగాణ బిడ్డలు కాదు, నీ అంతు తెలుసడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎవరికి రా నువ్వు జైల్లో బెదిరింపులు చేసేది, ఎవరిరా నువ్వు కోసేది? तेलंगाना बीजेपी की तरफ से सिंगारनी भरोसा यात्रा का पीर से आगाज हुआ। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव की क़यादत में ये भरोसा यात्रा कुत्तागुड़म, मनुगुरु और रामागुंडम का अहाता करेगी। बीजेपी के एमपी डी के अरुणा भी इस रैली में शरीक हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर सिंगारनी के मुलाजिमीन के साथ नामुनासिब सलूक का इल्ज़ाम आयद किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम CPS के मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी दी है। महकमा फाइनेंस ने GOMS नंबर 53 जारी करते हुए अहले मुलाजमीन को एक बार के लिए पुरानी पेंशन स्कीम OPS इख्तियार करने का मौका फराहम किया है। हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक वो मुलाजमीन इस सहूलत के अहल होंगे जिनकी तकर्री का नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने उसके बाद मुलाजिमत ज्वाइन की। ऐसे मुलाजमीन अब CPS से OPS में मुंतकिल हो सकेंगे। महकमे फाइनेंस ने वाज़ेह किया है कि GO जारी होने की तारीख से 3 माह के अंदर अहल मुलाजमीन को अपनी पसंद का ऑप्शन मुतालिका हक्काम के पास जमा करवाना होगा। एक बार OPS या CPS का इंतखाब करने के बाद उसे तब्दील नहीं किया जा सकेगा। कमिश्नर टास्क फोर्स सिकंदराबाद जोन ने जुबली हिल्स पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए नारकोटिक ड्रग की मुंतकिली और फ़रोख्त में मुलविस 3 अफराद और 3 कस्टमर्स को गिरफ्तार किया और उनके कब्ज़े से 1 लीटर 250 ग्राम हशीश ऑयल के बशमूल दीगर अशिया जुमला मालियती 16 लाख रुपये बरामद किए।
तेलंगाना पुलिस के 64 डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP रैंक के ओहदेदारों ने पुलिस के नए सीनियरिटी रूल्स को तेलंगाना हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों की समाअत के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद को नई सीनियरिटी रूल्स का जायजा लेने और नजरसानी की हिदायत दी। मुकदमे की आइंदा समाअत 28 जुलाई को होगी। दरख्वास्त गुजारों ने हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा सीनियरिटी फार्मूले को चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजारों ने कहा था कि उनकी सीनियरिटी का तयन हुकूमत के GO 123 की बजाय 1996 के तेलंगाना स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज रूल के कायदे 33 के तहत होना चाहिए। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 19 फरवरी 2024 को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप 1 इम्तिहानात में हासिल निशानात और ट्रेनिंग में हासिल होने वाले निशानात की बुनियाद पर सीनियरिटी का तयन किया जाएगा। ओहदेदारों ने कहा कि हुकूमत के नए अहकामात मौजूदा सर्विस रूल्स के बरखिलाफ हैं। ओहदेदारों ने 2 अलहदा दरख्वास्तों के जरिए हुकूमत के अहकामात को चैलेंज किया है। कमिश्नर टास्क फोर्स जुबली हिल्स जोन ने बोराबंडा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए नारकोटिक ड्रग की मुंतकिली और फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 23 लीटर 706 ग्राम हशीश ऑयल के बशमूल दीगर अशिया जुमला मालियती 2 करोड़ 96 लाख रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार IPS ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। चारमीनार पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP P चंद्रशेखर की अहलिया हेमलता ने इतवार की शब अलवाल में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गईं। पुलिस के मुताबिक ACP P चंद्रशेखर अपनी अहलिया हेमलता के साथ बिरंदावन कॉलोनी अलवाल में रिहाइश पजीर थे। इतवार की शाम हेमलता की नाश मुबैना तौर पर घर के अंदर छत के पंखे से लटकी हुई पाई गई। इत्तला मिलते ही अलवाल पुलिस मुकामे वाक़या पहुंची और इब्तदाई मुआयना किया। जाए हादसे से साइंसी शवाहिद इकट्ठा करने के लिए क्लूज टीम को भी तलब किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। तफ्तीश के दौरान ख़ानदानी मामलात, सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल और दीगर तमाम मुमकिना पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर चारमीनार डिवीजन के ACP हैं। सैबराबाद पुलिस ने 6.5 साला कमसिन पोत्री को लेकर मुबैना ड्राइविंग करते हुए पाए गए SI के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुज़िश्ता रोज एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें SI अपनी पोत्री के साथ ड्राइविंग करते हुए नजर आए। कमसिन बच्ची ड्राइवर की सीट पर मौजूद थी। वीडियो के वायरल होने के बाद नारसिंगी पुलिस ने BNS की दफ़ा 125 और मोटर व्हीकल एक्ट के 184 और 180 के तहत केस दर्ज कर लिया। इस दौरान तेलंगाना के DGP CV आनंद ने कमिश्नर सैबराबाद को सब इंस्पेक्टर पुजारी तिवारी को मुअत्तल करने की हिदायत जारी की है। ఆటో
బండి నా కంట్రోల్ ఉంది అయితే చెప్పండి నా ఫోటోలు చెప్పండి కంట్రోల్లో ఉంటాయి చెప్పు ఆటో బాబు ఓకే పోయా आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। निजामिया तिबी हॉस्पिटल के कामों को आइंदा साल जनवरी तक मुकम्मल करने वज़ीर सेहत की ओहदेदारों को हिदायत। तिबी अमले और टीचिंग फैकल्टी के तक़र्रुरात को यकीनी बनाने का ऐलान। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम से कबल हैदराबाद और सैबराबाद की तरक्की मेरे दौरे हुकूमत में हुई, चंद्रबाबू नायडू ने किया दावा। वज़ीर आला के पास फ्यूचर सिटी और मूसा नदी के लिए रकम है, किसानों के लिए नहीं। बीआरएस कायद हरीश राव की वज़ीर आला पर तनकीद। तेलंगाना में कर्नाटक तर्ज पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट पीआरसी जारी करने पर गौर। तेलंगाना हुकूमत के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खून के प्यासे, बीआरएस का ब्लड डोनेशन कैंप। खून के पैकेट्स के साथ वज़ीर आला की क़यामगाह तक मार्च की कोशिश नाकाम। नाम में टाइपिंग की गलती पर गैर मुल्की करार देना दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आसाम के 27 अफराद को बड़ी राहत। तेलंगाना टेट इम्तिहान के नतायज जारी, तकरीबन 44% उम्मीदवार हुए कामयाब। छह कत्ल करते हुए सनसनी फैलाने वाले शाहबाद के सफ़ाकाना कातिल राजकुमार की नाश कोत्तूर के करीब दस्तयाब। पुलिस ने खुदकुशी का शुबा किया जाहिर। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।